जी, अस्सलाम वालेकुम and hello everyone, and this in this video lecture we will going to solve March 2026 February March 2026 paper 22 A level accounting 9706/22, and the paper is called Fundamentals of Accounting. So let's start solving the question number 4, which is pertaining to cost and management accounting. It's a 30 marks question. The question says define each of the following. So the first item that we have to define is marginal cost. Basically, marginal cost is another name for variable cost. So what we can say is marginal cost is the cost of producing is the cost. Uh, so we can say marginal cost is the extra amount that you require in order to increase your production by 1 unit. Marginal cost is the extra amount a business requires a business requires in order to produce one more unit. Step cost is pertaining to fixed cost, and in step cost what happens is the fixed cost stays the same for a certain activity level but then increases by a certain amount uh, for another range. Like let's say we can take example as rent. अब obviously फैक्ट्री की कैपेसिटी होगी, लेट्स से हमने फैक्ट्री ए ली हुई है रेंट पर. अब लेट्स से उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8,000 यूनिट्स, सो वी कैन प्रोड्यूस 8,000 यूनिट्स. अब लेट्स से इफ वी प्लान टू प्रोड्यूस मोर यूनिट्स इन अ लॉन्गर रन, तो अब हमें एक और फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो हमारी रेंट की कॉस्ट डबल हो जाएगी आफ्टर 8,000 यूनिट्स. सो दिस टाइप ऑफ कॉस्ट आर कॉल्ड स्टेप कॉस्ट. तो समझाने के लिए मैंने आपको समझाया है, लेकिन हम डेफिनेशन लिखेंगे. क्या डेफिनेशन होगी? स्टेप कॉस्ट इज अ कॉस्ट is a cost that remains same for a specific range but increases by certain amount beyond that range. Say beyond that range. So you can define step cost like this. Now the question says the following information is available about current production. It says selling price 84, direct labor and units made and sold are 3,600 per month. We need to calculate the current profit. So in order to figure out the current profit, we need to figure out the contribution. So what is the formula for contribution? The formula is selling price minus variable cost per unit. So what is selling price? 84. And what is cost? What is the cost of direct material that will be used in order to produce 1 unit? 24, 3 8 are 24. So 24 plus 4 12 are 48. 48 plus 24 72. 84 minus 72. So 1 unit will give you a contribution of $12. Now what's profit? Profit is contribution per unit into number of units minus fixed cost. So contribution is 12, number of units are 3,600, and fixed cost is 28,260. So once you do this, you will get profit 14,940. Don't forget to put the dollar sign with the profit, otherwise your marks would be deducted. Thank you. Now let's move on to part C. The directors have made the following decision: increase the labor rate per hour by 5%. तो पहले लेबर रेट क्या था? पहले आप लेबर को दे देते 12 for 1 hour. Now you will give 5% extra. So if you take out 5% extra, 12 multiplied by 5 upon 100, so you will get, I think, 0.6. So the new labor cost, so the new price that you will pay to labor for 1 hour is $12.6, right?
Set the target profit per month of 18,000, maintain current level of production and sales. The directors are aware they will need to increase the selling price per unit as a result of these decisions. तो selling price भी आपकी change होगी, selling price भी change होगी. Calculate the increase in the selling price per unit in order to achieve the target. तो अब आप क्या चाह रहे हो, अब आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन per unit into number of units minus fixed cost. और you can use another formula, एक specific formula भी होता है टारगेट प्रॉफिट के लिए, बेसिकली वो भी इसी से निकला है, टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो आप देखें प्रॉफिट कितना है आपके जहन में, प्रॉफिट दैट यू नीड टू अचीव इज 18,000. कंट्रीब्यूशन आपको नहीं पता, उसको मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ. नंबर ऑफ यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स वही रहेंगे जो पिछले जो हर महीने होते हैं. तो नंबर ऑफ यूनिट्स वुड स्टे द सेम 3600. सो 3600 आप कर लें, और फिक्स कॉस्ट भी आपकी वही रहेगी. तो फिक्स कॉस्ट क्या है आपकी, फिक्स कॉस्ट इज 28,260. अब आप एक्स की वैल्यू वर्कआउट कर लें, 18,000 प्लस 28,260 इक्वल्स टू 3600 एक्स. तो ये आपके पास नया कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. तो अब आपका जो ये 3600 है ना, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. If you do it, if you do the math, 18,000 plus 28,260 divided by 3600, so the new contribution that you will get is $12.85. सही है. So your contribution would become $12.85. Now how do you get contribution? Contribution you get selling price minus variable cost per unit. तो अब सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता, उसको बॉक्स अज्यूम कर लो या वाई अज्यूम कर लो. और वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट नहीं आएगी. तो लेबर कॉस्ट अब नहीं क्या होगी, एक यूनिट की. तो अब यू आप लाइक वन यूनिट टेक 4 आवर एंड नाउ यू आर पेइंग 12.6 फॉर 1 आवर. तो 12.6 मल्टीप्लाई पे अगर आप 4 करें तो आपको पता चल जाएगा एक यूनिट के कितने देंगे. तो 12.6 50, आई थिंक इट वुड बी 50.4. तो आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो 50.4 है, मटेरियल कॉस्ट तो वही रहेगी 24. तो 24 प्लस 50.4, दिस इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो सेलिंग प्राइस में से जब आप ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो अब आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा रिवाइज वाला 12.85. तो अब आपको ये वाई निकालना है. तो क्या आएगा वाई, नई सेलिंग प्राइस आ जाएगी. 24 प्लस 50.4 आप ब्रैकेट सॉल्व करें तो ये आ रहा है वाई माइनस 74.4, ये आ रहा है 12.85. अब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 74.4 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा. तो द न्यू price that you will charge is 87.25. but you won't stop here, you need to calculate the increase in the selling price. तो पहले आपकी सेलिंग प्राइस थी 84, अब हो गई 87.25. तो इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज 87.25 minus 84 equals to $3.25. अब ये आंसर के साथ डॉलर डालना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल गिव useless reasons to the examiner to deduct your marks. So please avoid losing out marks on silly mistakes. Thank you. Now additional information. At another factory which also uses marginal costing, a different product is made. The following forecast information is available. Selling price, direct material, direct labor, unit made and sold per month, fixed cost. The factory is currently operating at full capacity. Directors have informed of a large increase in direct material cost of 50% per unit. They are considering two options. Option A, alter the design of the products so that 20% less material are required to make one unit. Increase monthly expenditure on advertising by 4,000, as a result of which monthly demand should increase by 10%. The factory can, अब देखें full capacity पर operate करिए ना, तो if they increase the demand by 10%, they would need to arrange for something. तो वो क्या करते हैं, फैक्ट्री को ओवर टाइम कंडीशंस में ऑपरेट करेंगे. अब इन ओवर टाइम कंडीशंस डायरेक्ट लेबर इज पेड अ प्रीमियम ऑफ 40%. अब जब क्योंकि वो ओवर टाइम काम करेंगे तो ओवर टाइम की वजह से जो भी एक्स्ट्रा यूनिट्स बनेंगे उसमें आपको लेबर को एक्स्ट्रा 40% पे करना पड़ेगा. फिर ऑप्शन बी है, उसको हम बाद में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पार्ट है प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. अब देखें एग्जामिनर यहाँ पे आपसे चाह रहे हैं कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट बनाएं. तो यू नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन कि यहाँ पे आप प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करेंगे, इसीलिए फॉर्मेट का यहाँ पे ख्याल रखना है. सही है, ताकि आप
कैलकुलेट में इतना फॉर्मेट्स का आपको ख्याल नहीं रखना है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली ख्याल रखना है बिकॉज एग्जामिनर वांट्स इट। तो सबसे पहले आप सेल्स, जैसे इनकम स्टेटमेंट आप बनाते तो सेल्स में आप देखें, आपको पता है 10% से अगर डिमांड बढ़ा दें तो पहले 8000 यूनिट्स थे ना, अब कितने हो जाएंगी 8000। अब आपको पता है 8000 प्लस 800 टोटल 8800 यूनिट्स हो जाएंगे। सही है, 8000 का आप 10% निकालें, 8000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 तो 800 आएगा। तो 800 फर्दर आपको 800 एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो 8000 प्लस 800 8800 यूनिट्स नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग। और सेलिंग प्राइस क्या है आपकी 8028, तो ये आपकी सेल्स आ जाएगी 8800 मल्टीप्लाई बाय 28, सो दिस वुड बी $246,400। इसके बाद आप इसके बाद आप लिखेंगे लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे इन्वेंट्री का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सो आई एम स्किपिंग इन्वेंट्री एट स्टार्ट। अब आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा फुल फॉर्म लिखें, ट्राई टू राइट फुल फॉर्म सो दैट यू डू नॉट गिव एनी रीजन टू द एग्जामिनर ऑफ डिडक्टिंग मार्क्स। डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट में कितना लग रहा है $9, लेकिन अब ये आपको निकालना पड़ेगा। देखें $9 का लग रहा है, 50% से आप मटेरियल की कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो अब आप अगर मटेरियल की कॉस्ट 50% से बढ़ाते हैं तो मैं यहीं पे जो ना एक दो, यहाँ पे वर्किंग की स्पेस है नहीं तो मैं एक दो स्पेस छोड़ देता हूँ। अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये देखें डायरेक्ट मटेरियल। तो अगर पहले था एक यूनिट पे 9 का लग रहा था, अब अगर 50% से कॉस्ट बढ़ जाए तो 9 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100, तो आपकी $4.5 से कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब आपको 9 प्लस 4.5 $13.5 का मटेरियल एक यूनिट पे लगाना पड़ेगा। लेकिन अब आप मटेरियल अगर अगर आप पहले की तरह यूज़ करते मटेरियल मटेरियल कम ना करते तो एक यूनिट पर $13.5 का मटेरियल यूज़ होता। लेकिन नाउ यू आर यूजिंग 20% लेस मटेरियल, तो अब 13.5% का अगर आप 20% निकालें तो 10% आएगा 1.35, 1.3, 1.35, 2.7, तो 2.7 आएगा। तो अब क्योंकि आप 20% मटेरियल कम यूज़ करेंगे तो आपका जो मटेरियल है ना उसकी जो कॉस्ट है वो $2.7 से कम हो जाएगी। तो अगर आप $2.7 से कम करें मटेरियल की कॉस्ट को तो अब नई कॉस्ट आ जाएगी 13.5 माइनस 2.7। और किसी की मैथ अच्छी हो तो वो वैसे डायरेक्ट भी कर सकता है एक स्टेप में। लेट से मैं अगर होता तो मैं क्या करता, मैं करता 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5, डायरेक्ट 13.5 आता। फिर उसको जो ना मैं 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 का देता तो डायरेक्ट ही 10.8 आ जाता। 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8 10.8 आ जाता। जिनकी मैथ अच्छी उनको समझ आई है मैंने जो कहा है। 8800 मल्टीप्लाई बाय 10.8, सही है। तो 8800 मल्टीप्लाई बाय 10.8, एक यूनिट पे लग टोटल रॉ मटेरियल लग रहा है 90, डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 95040 का। अब डायरेक्ट लेबर अब डायरेक्ट लेबर में कोई चेंज नहीं है फॉर दिस फर्स्ट 8000 यूनिट्स, लेकिन जो एक्स्ट्रा 800 है उस पर आप डायरेक्ट लेबर को 10 टाइम ऊपर पे कर रहे हैं, सही है। तो अब आपकी जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो 12 रहेगी 8000 यूनिट्स के लिए। तो और डायरेक्ट लेबर आप लिख सकते ओवर टाइम, ओवर टाइम में जो डायरेक्ट लेबर काम करेंगे आप उनको 10% एक्स्ट्रा देंगे। अगेन अब आप कैसे निकालेंगे, 12 दे देंगे ना, तो अब आप 12 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 निकाले, आपको पता चल जाएगा। आप $1.2 एक्स्ट्रा देंगे अब लेबर को फॉर दोज एक्स्ट्रा यूनिट्स। 12 प्लस 1.2 $13.2 अब आप देंगे उन एक्स्ट्रा यूनिट्स के लिए। 13.2 इंटू 800, तो 12 8 सा 96,000, और ये आप देंगे कितने 13.2, sorry not 10% extra, you're giving 40% extra, so you will multiply this by 40 upon 100, तो 4.8 आंसर आएगा। तो आप 4.8 एक्स्ट्रा देंगे, 12 प्लस 4.8 16.8 देंगे आप। तो अब जो एक्स्ट्रा 800 यूनिट्स के लिए आप लेबर को पे करेंगे वो $16.8 के हिसाब से पे करेंगे। तो $16.8 के हिसाब से अगर एक आप पे करते हो फॉर 1 यूनिट
800 यूनिट के लिए आप मल्टीप्लाई करके निकाल लें, 13,440 आप पे करेंगे। तो ये तो हो गया आपकी वेरिएबल कॉस्ट। डू वी हैव एनी अदर आइटम इन वेरिएबल कॉस्ट? आई डोंट थिंक सो वी हैव गॉट एनी अदर आइटम इन वेरिएबल कॉस्ट। तो बस आप ये दोनों माइनस कर देंगे तो आपके पास नया कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, नया कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, विच इज़ हाउ मच? ये देखिए सबको ऐड कर दें, 13,440 प्लस 96,000 प्लस 95,040, 204,480। अब ये आप अगर माइनस कर दें 246,400 में से, तो ये आ जाएगा 41,920 कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ गया। अब आप लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अब आपको याद होगा, एक तो आपकी रहेगी सेम 28,700, बट यू आर स्पेंडिंग 4,000 एक्स्ट्रा ऑन एडवर्टाइजिंग एज वेल। तो अब आपकी बढ़ जाएगी 4,000 से, तो अगर आप 4,000 इसमें ऐड कर दें तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 32,700, और ये आपका आ जाएगा 9,220, ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द मंथ, प्रॉफिट फॉर द मंथ यूजिंग ऑप्शन ए। सही, प्रॉफिट फॉर द मंथ, ऑप्शन ए सही। तो ये हो गया आपका। अब ऑप्शन बी पढ़ के देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? ऑर्डर ऑल डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम अ न्यू सप्लायर। तो भाई वो पुराना जिससे हम ले रहे थे वो 50% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था, अब हम नए सप्लायर से मटेरियल ले लेंगे और वही कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वही प्रोडक्शन और सेल्स लेगी। सप्लायर विल ऑल्सो चेंज द इंक्रीज पर यूनिट, बट इट इज प्रिपेयर टू ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर मेकिंग बल्क ऑर्डर्स। तो भाई वो भी 50% से प्राइस इंक्रीज करेगा, लेकिन वो साथ 30% डिस्काउंट भी देगा क्योंकि हम उससे बल्क में बाय करेंगे। तो अगेन इसके लिए भी हम बनाना शुरू करते हैं फिर इनकम स्टेटमेंट। तो अगेन सबसे पहले क्या आ जाएगी? सेल्स। अब इसमें तो हम एक्स्ट्रा नहीं बना रहे, तो सेल्स, इसमें तो 8,000 यूनिट्स ही आप बनाएंगे, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 28, तो यार क्या आ जाएगा? 224,000 डॉलर। फिर आप इसमें लेस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, अब डायरेक्ट मटेरियल की वर्किंग हम नीचे कर लेते हैं कहीं पे, तो ये दो लाइंस मैं खाली छोड़ देता हूँ डायरेक्ट मटेरियल के लिए। डायरेक्ट मटेरियल आप कैसे निकालेंगे? अब जाहिर सी बात है 50% से प्राइस बढ़ जाएगी, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 50%। अब आप चाहे तो डायरेक्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर सकते हैं, लेकिन जिसकी मैथ कमज़ोर है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 50% करेगा तो 4.5 आ जाएगा। तो भाई $4.5 से प्राइस बढ़ेगी तो नई प्राइस हो जाएगी 9 प्लस 4.5 $13.5। लेकिन अब उसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा बल्क ख़रीदने की वजह से हर यूनिट पे। 13.5 का अगर आप 30% निकालें तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? अब जो एक्स्ट्रा स्मार्ट होता है मैथ्स में, वो क्या करता है 13.5 का डायरेक्ट 70% निकाल लेता, उसको प्राइस पता चल जाती। तो $4.05 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 13.5 में से अगर आप $4.05 का डिस्काउंट माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा अब एक यूनिट आपको $9.45 का, एक यूनिट के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल है वो $9.45 का पड़ेगा। जो आप में से स्मार्ट होता है वो क्या करता, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.7 करता। सही है, 9.45 मल्टीप्लाई बाई 8,000। तो इसको 8,000 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा टोटल 8,000 यूनिट्स पे कितना मटेरियल यूज़ हुआ। फिर डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर में कोई चेंजेस नहीं है। अब आप 12 ही देंगे डायरेक्ट लेबर को, 12 इंटू 8,000, $96,000। डायरेक्ट लेबर के बाद, there is no other variable cost. So if you take out the total 90 plus 75, 165, 165, 170, 1,600, तो ये आपका आ जाएगा 24 प्लस 28, कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 224 माइनस 171.6,
52,400 is your total contribution. अब आपकी फिक्स कॉस्ट भी वही रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट आप माइनस कर दें, तो वो है आपकी 28,700। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23,700 फॉर प्रॉफिट फॉर द मंथ। सही है बेटा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, all direct materials are ordered from one supplier under option A, just in time method of inventory control is used, it is not possible to use JIT for option B। ऑप्शन बी में तो हम बल्क में बाय करें ना, तो इसलिए वहाँ JIT पॉसिबल नहीं है, क्योंकि JIT में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना बनाना है, आप उतना ही बस मंगवाएंगे। एडवाइज द डायरेक्टर विच ऑप्शन डू यू चूज, जस्टिफाई और चॉइस बाय डिस्कसिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। तो भाई ये प्रॉफिट देखें यहाँ पे 9220 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 23,700, 23,700 आ रहा है। सही है। सो ऑप्शन बी इज गिविंग मोर प्रॉफिट क्लियरली। सही, तो हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। सही, ऑप्शन इन ऑप्शन ए JIT means that no inventory would be maintained in storage. This would reduce money from being tied up in inventory, from being tied up in inventory। तो आपके पैसे नहीं फंसे होंगे इन्वेंट्री में अगर आप JIT यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको स्टोर नहीं करनी पड़ेगी। सही है। तो एक तो ये बेनिफिट है ऑप्शन ए का। सही है, तो ये हो गया। उसमें देखें ए में आप डिज़ाइन भी ऑल्टर करें मटेरियल यूज़ करके, ऑल्टरिंग द डिज़ाइन बाय यूजिंग लेस मटेरियल might not be acceptable by the customer। कस्टमर शायद उसको एक्सेप्ट ना करें, might not be acceptable by the customer। बाय द कस्टमर। सही है। अच्छा, इन क्वेश्चंस में आप ये भी याद रखें, आप ऑपोजिट पॉइंट नहीं लिख सकते। आप जैसे मैं ऑप्शन ए में बोल दूं कि आई एम नॉट गोइंग फॉर ऑप्शन ए बिकॉज इट इज़ गिविंग लेस प्रॉफिट, तो अब मैं ऑप्शन टू में अलग से ये नहीं लिखूंगा कि वी शुड गो फॉर ऑप्शन टू बिकॉज इट इज़ मोर प्रॉफिट, यानी वो अलग से पॉइंट काउंट नहीं होगा। जो पॉइंट आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना, तो वो एक ही पॉइंट काउंट होंगे। सही है, तो एक जगह मुझे मार्क मिल जाएगा, दूसरी जगह मुझे मार्क नहीं मिलेगा। Altering design by using less material might not be acceptable by the customer। और यहाँ पे आप ओवर टाइम भी करवा रहे हो, वर्कफोर्स माइट नॉट बी विलिंग टू वर्क बियॉन्ड रेगुलर आवर्स। तो ये भी होगा, 3 पॉइंट होगा ऑप्शन। इन ऑप्शन बी पहला फैक्टर प्रॉफिट इज significantly high as compared to option A। ऑप्शन बी का प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली हाई एज कंपेयर टू ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए, अगर एग्जामिनर को आप नंबर भी कोट कर देना उसको अच्छा लगेगा, तो ये आप डिफरेंस बता भी सकते। आप बोल सकते 23,700 माइनस 9,220 14,480 एज कंपेयर टू ऑप्शन ए, दैट इज मोर प्रॉफिट ऑफ $14,480। तो एक पॉइंट बी का हो गया। और क्या हो सकते हैं? सही है। फिर ऑप्शन बी के भी आप ड्रॉबैक भी बोल सकते हो। ऑप्शन बी के द न्यू सप्लायर, अब न्यू सप्लायर की तरफ हम जा रहे हैं ना, माइट नॉट सप्लाई गुड्स टाइमली
वो टाइमली गुड्स ना दे हो सकता है, और द क्वालिटी माइट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, या क्वालिटी उसके पास से सेम ना, और द क्वालिटी माइट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। और भी पॉइंट्स लिख सकता हूँ, लाइक ही माइट नॉट बी ऑफरिंग द ट्रेड डिस्काउंट इन लॉन्गर रन, तो फिर नए उसका फ़ायदा नहीं हुआ। सही है, तो ये सब पॉइंट हो गए। तो अब आपको एंड में एडवाइस भी देनी है। आई वुड स्टिल सजेस्ट द कंपनी टू चूज ऑप्शन टू बिकॉज ऑफ हायर प्रॉफिट। अब आप एंड में अपनी एडवाइस बता दें, और एडवाइस का की वजह क्या है वो भी बता दें। सही, सो दिस इज इट, थैंक यू।